इन फर्स्ट ईयर जब हमें पहली बार यूथ फेस्ट करने का मौका मिला था विद अ टीम ऑफ 7, हाँ हमें मौका मिला कि वी कैन गो इन यूथ फेस्ट। अब जब यूथ फेस्ट में गए तो वी डिडंट नो कि वन एक्ट होता क्या है। Why a student in college should join a cultural committee, should not join a cultural committee. Same for technical committee. सेंटेंस में सम अप करना होगा, सो आई वुड से टेक्निकल कमिटी टीचेस यू हाउ द वर्ल्ड वांट्स टू सी यू, एंड अ कल्चरल कमिटी विल टीच यू हाउ यू वांट टू सी द वर्ल्ड। फर्स्टली हम लोग पहले कास्ट हुए कि वन एक्ट में कौन करेगा कौन नहीं करेगा, एंड आई वॉज कास्टेड फॉर वन ऑफ द रोल्स, सपोर्टिंग कैरेक्टर नेम्ड, और मेरा ये था अपना नाम भूल गया, सॉरी। Shwetanshu Dubey, who is the founder of Team Rangmanch, and Ved Yadav, who is the current head of Team Rangmanch, who are here to share their journey of starting Rangmanch to leading it. Let's dive into this podcast and learn from the creators and the leaders of Team Rangmanch. Stay tuned. It's been 4 years we have started Rangmanch, right? 4 साल हो गए रंगमंच को स्टार्ट होते हुए, and the 4 years की जो जर्नी थी, वो जो ग्राफ था, it was a roller coaster. You enjoy that roller coaster. I will use the word enjoy because that journey is really enjoy वाली journey, right? Yes. So I would like to start with the journey itself, like from the very first phase. How you started Rangmanch, क्या difficulties आई थी, and who were there to support you guys? Okay. So what I would say कि कैसे स्टार्ट हुआ, it was a, I mean we started from almost like nothing. You know, we started from zero. I was in my last year, like my last year started before, I think I completed my third year, and third year के बीच में 2 महीने का समर वेकेशन आता है, and in that summer vacation I was planning here, let's do something, uh, and that's when I got to know कि, you know, we can start something like this. So basically the journey started back in 2019 itself when I joined, and when I came to college for the first time. Over a period of time I understood कि यार हम एक टेक्निकल कॉलेज है. So being in technical college, I saw tons of other committees. You know, we still dance committee was new, singing committee or the band that we had was somehow new. I noticed one thing कि technical colleges में hardly there are any drama clubs or any theaters. So that's when it struck my mind कि कहीं ना कहीं यार कुछ तो इसके लिए तो start करना है, because I love the craft, I love the whole culture around it. So I thought कि we'll do something about it. But again, everything starts with almost zero. कि Yeah. सिर्फ करना था, but I had zero idea कि what it will take, how to at least, you know, start with it. सबके लिए zero idea. Then first year निकला, second year निकला, COVID आ गया. So COVID के बाद भी कुछ हुआ नहीं. So when I came back in third year, so I had this कि यार I have to do it anyhow. This needs to be done. And that's when I would say कि it helped me with regards to I would say some of the people जो नए नए आए थे, मेरा आइडिया था, उनका भी आइडिया क्वाइट सिमिलर था. So it was Tejas, one of the other founding members that we had, who wanted to do the same thing because he was involved with acting, and मैं एक्टर नहीं था, मैं डायरेक्शन की तरफ थोड़ा मेरा ज्यादा झुकाव रहता है. Okay. So I would say कि वहां से we started because he came to me कि let's build something together. And that's when he came to me. तो हमारे पास टीम नहीं थी. So we started, as I mentioned, we started with zero. तो हम सिर्फ 2 लोग थे और हम बोले यार इसको करने के लिए कम से कम टीम तो चाहिए होगी थोड़ी Yeah. बहुत. So that we can at least कुछ इवेंट या कुछ एक चीज, एक आई वुड से स्क्रिप्ट लिखा, उसको परफॉर्म करने के लिए लोग तो चाहिए. And we had zero people apart from 2 of us. Then तेजस के कुछ दोस्त थे जो basically they had zero idea about what they are doing with regards to a drama. बट हमने उनको कन्विंस किया कि चलो आ जाते हैं, एंड टोटल हम 7 जन मिले, एंड दैट्स हाउ आई वुड से That दैट्स हाउ या एवरीथिंग स्टार्टेड. एंड 7 लोग मिसफिट्स जिनको मे बी ड्रामा के बारे में कुछ मालूम नहीं है, थोड़ा बहुत सुना होगा, नॉलेज होगा. So that was not also zero start. It was a negative start. Like, Yes, you don't know the exactly. thing what you are doing. हमको कुछ Okay. मालूम ही नहीं था. सो इट वाज मोर लाइक अ नेगेटिव स्टार्ट फॉर अस कि किसी को कुछ मालूम नहीं. बट हम, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स amongst all of us कि we were ready to learn whatever it requires. We were ready to learn कि भाई जो भी है, नहीं भी आता हम सीखेंगे, एंड वही मोटिवेशन लेके हम चले. एंड यस, वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे हाउ टू टेक दिस फॉरवर्ड.
आई हैड फ्यू फ्रेंड्स दूसरे कमिटीज में जिनसे मैंने हेल्प मांगा, सिंस आई वाज इन्वॉल्व विद मल्टीपल कमिटीज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत सबसे हेल्प मिला। And kudos to, I would say, faculty that we had, especially Yogesh Kene sir. Mm-hmm. I think he has been a pillar for us from day one itself. उनका जितना support मिला है, and I would say उनके support के बिना कुछ भी possible नहीं होता। Whatever we are today, nothing would have been possible without him, because he supported us, he backed us from day one कि I know you guys are doing something. So I think Kene sir का बहुत बड़ा हाथ है, a lot of other faculties as well, and again Sandeep sir ने काफी उसमें help किया है, because he kept giving us opportunities after opportunities just to prove ourselves. So ये होते गए, and one of the big thanks would go to the, I would say, Spotlight team as well. PCACS से Spotlight थे, even I would say, being, you know, आप opposite end पे हो, but the way they supported us, because they have been in the system for past few years, उन्होंने हमें काफी हेल्प किया, हमें ग्रूम किया हाउ टू टेक थिंग्स। बेसिक से बेसिक चीजें कि स्टेज पे खड़े कैसा होना है, Hmm. कि आप मतलब Right way. एग्जैक्टली Yeah. वेयर द लाइट इज, वेयर द ऑडियंस इज, आप कहाँ पे खड़े रहोगे, हर एक चीज बेसिक जो हम में नहीं थी वो उन्होंने सिखाया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिग थैंक्स टू देम। एंड इफ यू आस्क मी कि हाउज द जर्नी हैज बीन, आई थिंक इट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी फॉर, you know, हमेशा I would say it's a roller coaster ride। आप ऊपर जाओगे, नीचे आओगे, you will see everything। We saw, I think हमने अपने पीक भी देखे हैं, हमने अपना सबसे लोएस्ट पार्ट भी देख लिया है पिछले 2 साल में, 3 साल में। So I think ये सारी चीजें मिला के, if you'll say accumulate करके, if you'll ask me if I'm happy where I'm today, I think I would be really happy to say कि मे भी जो चाहिए था वो अचीव कर लिया। So I think that's my journey for you। That's really an awesome journey to hear. And yeah, this was the part when you guys started this, Yeah. right? Talking about the present situation, like the last year youth festival and previous year wala youth festival. With you was in both the youth festival, I know. Okay, so that was a really great performance. As I have also seen those performance. So let's talk about that thing. How you guys molded things. Like you guys were not knowing a lot, if someone is there senior who is ready to guide you, he knows something, but it was a difference because you won that prize during this youth festival. Just share some experience of that youth festival, the journey, and also you guys were doing like 8 घंटे का practice, right? 8 घंटे का practice you guys were doing. How you guys used to manage those things and tried everything in that period? यूथ फेस्टिवल आई थिंक पर्सनली रंगमंच के लिए बहुत बड़ा इवेंट है यूथ फेस्टिवल। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी साथ में, एंड कॉलेज इवेंट्स आर फन एंड एवरीथिंग एंड वी गिव इट आर ऑल, बट यूथ फेस्टिवल इज़ अ इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन। आई डोंट नो इफ पीपल नो अबाउट इट लॉट और डोंट नो, बट इट इज़ वेरी स्पेशल फॉर अस। इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर रंगमंच, and because of that we wanted to give it our all. The first youth festival that I did was the first one in which we did a one act. One act is a 30 minutes theater act. It is proper acting with everything. We had a lot of help. We had Dada, we had Tai, and with their guidance and everything, we did a way better act than we expected from ourselves. बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग को हेल्प हुई। 8 घंटे वाला प्रैक्टिस वाला बात हो जाए या फिर ये पहले तो स्टार्ट आई थिंक यूथ फेस्टिवल होता है एंड ऑफ द कॉलेज, कॉलेज के एंड में, जैसे सेमेस्टर एंड में हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस के लिए। वी फाइंड स्क्रिप्ट्स, दादा से हम लोग पूछते हैं, फिर बाद में अप्रोच देम, बात करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दादा ब्रिंग्स अस अ लॉट ऑफ थिंग्स। दादा इज दादा आई मीन विनीत दादा, विनीत तांडेल। He is a previous alumni of Spotlight, but he helps us a lot, and that's why he इन्होंने आई थिंक अप्रोच किया था, इन हमारे सीनियर्स ने उनको। स्पॉटलाइट वंस अगेन, स्पॉटलाइट वाज अ वेरी हेल्पफुल कम्युनिटी फॉर अस। उन्होंने हम लोग को सब सिखाया, और वही वहाँ से दादा, वी फाउंड दादा, तो दादा ने हम लोग को वही हेल्प किया पूरी तरह। द होल यूथ फेस्ट इज गाइडेड बाय दादा, डायरेक्शन इज डन बाय दादा एंड एवरीथिंग। पहला वन एक्ट पर्सनली फॉर मी, आई डिड नॉट नो एनीथिंग। मैं दादा को भी नहीं पहचानता था, मैं बहुत सारे सीनियर्स जो मैंने कभी कभी उनको भी नहीं पहचानता था। आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, दादा को मिला, ताई से मिला वगैरह, एंड स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूँगा कि आई लर्नड अ लॉट। वो पूरे जितना भी आई थिंक 2.5 महीना होगा, आई लर्नड वेरी मच। स्टार्टिंग में हम लोगों को, मुझे पता नहीं था कि होता क्या है थिएटर वगैरह इतना, लेकिन जब दिस प्रोसेस दैट स्टार्टेड एंड वो धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे गए ना,
तो शुरुआत में नहीं समझ में आ रहा था इतनी चीज़ें, और मैं तो फर्स्ट ईयर में था, मुझे नहीं पता था कि थिएटर के बारे में इतना कुछ। लेकिन तब धीरे धीरे आगे गया, आई एन्जॉयड अ लॉट। मैंने फर्स्टली हम लोग पहले कास्ट हुए कि वन एक्ट में कौन करेगा कौन नहीं करेगा। धीरे धीरे था, अंशोर था, दादा अंशोर होता, वो थे ज़्यादा सही है, लेकिन उन्होंने लिया एंड आई वॉज कास्टेड फॉर वन ऑफ द रोल्स, सपोर्टिंग कैरेक्टर नेम्ड, सॉरी, सपोर्टिंग कैरेक्टर विथ गनू वॉज द ये, और मेरा ये था, मैं अपना नाम भूल गया, सॉरी कैरेक्टर का, बट वही आई डिड, मैंने एन्जॉय किया। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम वी डिड अ वन एक्ट, और वो फर्स्ट टाइम हम लोग वन एक्ट जीतने के आने के बावजूद वी क्लियर्ड द जोनल्स राउंड। और आई थिंक मैं बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ ये चीज़ कि इवन दो हम लोग वन एक्ट फर्स्ट टाइम कर रहे थे, वी डिड नॉट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर इवन देन वी क्लियर्ड द जोनल्स राउंड दैट लॉट ऑफ कॉलेजेस कुड नॉट डू। And that also a technical college. मैं Exactly. वही बोलने वाला था कि वी आर द ओनली, वी एट दैट टाइम आई थिंक वी वर द ओनली टेक्निकल कॉलेज, ओनली इंजीनियरिंग कॉलेज दैट took part in youth festival and as well as won the zonals round, and then we went to the final round. zonals में सेट वगैरह ज़्यादा नहीं होता है, बहुत मिनिमम सेट होता है, लेकिन वी हैड डिफरेंट स्पेक्ट्रम आफ्टर zonals। हम लोग बहुत हाई पे थे, बहुत ज़्यादा हाई पे चल रहे थे। वी वन zonals में हम लोगों ने स्किट्स जीते, एंड देन हम लोगों ने वन एक्ट। मेरे लिए वो दिन, जिस दिन हम लोगों ने परफॉर्म किया और उसी दिन रिजल्ट्स लगते हैं zonals के, एक बहुत सिंपल जगह होता है। It's like a classroom ऐसा, हाँ, कॉलेज का क्लासरूम या तो हम लोग सब नीचे वो बैठे हुए थे वगैरह, एंड था अ लॉट ऑफ एंटिसिपेशन। मैंने पर्सनली ऐसा सोचा नहीं था कि मैं अपने लाइफ में कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर पाऊंगा। द थ्रिल दैट आई फेल्ट इन दैट मोमेंट, द फियर, द, क्या मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा वो चीज़, लेकिन अंदर से आई वॉज वेरी इमोशनल। ऐसा मैं शायद एकदम एक्साइटेड भी हो जाऊंगा, एकदम रो भी दूंगा, वैसा था, और वो हुआ। So you cried on the stage, right? I was there with you guys. Yes, And I cried Ved on the cried stage. on stage. So Yeah. he cried on stage. People watching him as audience were crying. एंड मैं कॉलेज छोड़ चुका था तब तक, मैं जॉब स्टार्ट कर चुका था, तो मैं जॉब पे वो वीडियोस देख के आई वाज क्राइंग कि वी आर डूइंग समथिंग। Oh. जस्ट ऑन द कॉन्ट्रास्ट आई वुड लाइक टू Hmm. पुट समथिंग इन Hmm. कि इन फर्स्ट ईयर जब हमें पहली बार यूथ फेस्ट करने का मौका मिला था विद अ टीम ऑफ 7, Hmm. सो हम This was in year 2022. 22 2022, Okay. ठीक है, सो वी डिड इट बिफोर इवन एस्टैब्लिशिंग एज अ टीम। हाँ. हमें मौका मिला कि वी कैन गो इन यूथ फेस्ट। अब जब यूथ फेस्ट में गए तो वी डिडंट नो कि वन एक्ट होता क्या है। नॉट कुछ इवन आइडिया नहीं किडिंग, था, कुछ हमें आइडिया कुछ नहीं। आइडिया नहीं था। Okay. हम थे और वो 7 लोग की टीम थी। हाँ. हमें वन एक्ट के बारे में कुछ मालूम नहीं था। बट द आई वुड से फन फैक्ट इज कि वी वांटेड टू पार्टिसिपेट इन वन एक्ट। हमने बहुत सारी वीडियोस देखी क्या कर सकते हैं। डिफिकल्ट पार्ट वाज कि 7 लोग की टीम पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकती। मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है, और हम ऑलरेडी 4 चीज़ों में इन्वॉल्व थे, हम पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। So when you see the growth or overall evolution from that day to this day, and after that, I think हम Youth Fest में हमेशा गए हैं and we have won multiple things at one. You know, we have won Best Actor as well last year as well. So I think overall the growth which I have seen in Youth Fest, you know, representing our college as a technical college, we are doing so good. So I think that speaks volumes, and I'm really happy with the kind of performance that they have been doing, and even the new generations coming in would be doing. That's really great. अच्छा, we were talking about the generational, ठीक है? Yes. So it was started in 2022. Now it is 2026, ठीक है? फॉलो अप क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों के लिए। यू स्टार्टेड उस टाइम पे इतना कुछ यू वर नॉट नोइंग थिंग्स, ठीक है। यू गाइस नो लॉट ऑफ थिंग्स इफ यू कंपेयर दोस थिंग्स दैट Yes, टाइम के हिसाब compared से, to their time, हाँ। yes, we have एंड little bit नाउ of द अपकमिंग जनरेशन व्हिच इज द बैच 2026 2027, राइट? They are entering in the what we say that zone, like you guys practiced that 1 year before, ठीक है। What difference you saw when you was doing those acts and now people are doing that acts? I would say जो मैं डिफरेंस देख पा रहा हूँ अपने हिसाब से is that now whenever the new students are coming in, they are more polished. हम बिल्कुल पॉलिश नहीं थे, हमें कुछ भी मालूम नहीं था। एज आई मेंशन कि हम वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, तो दैट बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमने खुद से सीखी हैं। नाउ दे हैव गॉट अ स्टेज,
उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है टू बेसिकली टू ग्रूम देमसेल्व्स। सो आई थिंक वो हेल्प करता है। एंड आई वुड से द स्टूडेंट्स कमिंग इन दे आर ऑलरेडी पॉलिश्ड, उनको मालूम है कि उन्हें क्या क्या करना है। करना है, या आई थिंक दैट इज समथिंग जो हेल्प करता है बाकी चीजें ग्रैस्प करने के लिए। एंड अगेन जो पहले चीजें शायद हो सकती थी कि यार एम्बिशन होता है कि कॉलेज में आके इफ आई गेट अ चांस आई डू, एक एक बार तो एक्टिंग करके दिखाना है या एक बार तो स्क्रिप्टिंग करना है, डायरेक्शन करना है। पहले शायद वो उनके पास स्टेज नहीं था, वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी। बट नाउ व्हेन पीपल कम, दे सी कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी यहाँ तो मिल रही है, तो ज़्यादा एंथुसियास्टिकली चीज़ें होती हैं। सो आई थिंक दैट आल्सो हेल्प्स। बट अगेन ही वुड बी अ बेटर पर्सन टू आंसर कि करंट सिनेरियो में क्या या चल रहा है। मैं अग्री करूँगा उनके साथ कि दे हैड अ डिफरेंट रॉनेस टू देम। उन्होंने स्टार्ट की हैं ये चीज़ें, तो दे डिड नॉट नो लॉट ऑफ थिंग्स, दे डिड नॉट, बट whatever we learned and whatever we have experience with, I personally have experience with, is because of them. उन्होंने हमारे लिए कुछ चीज़ें एस्टैब्लिश की दैट वी हैव बेनिफिट्स ऑफ, कि हम लोग उस चीज़ का हम लोग फ़ायदा उठा पा रहे। और वही है कि उन्होंने नहीं पता था उनको, और वही जो नॉलेज आया है वो उनकी तरफ से हमें आया है। एंड देन हम लोग जो एक्यूमुलेट करते हैं, देन वी पास ऑन अदर, ये नए बच्चे आते हैं उनको भी नहीं पता होता, लेकिन वी हैव क्रिएटेड सिस्टम्स फॉर दैट कि हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर देम। एक्टिंग, डायरेक्टली एक्टिंग नहीं, वी हैड इम्प्रोव्स, वीडियो इम्प्रोव्स, हम लोग अलग अलग एक्ट्स इम्प्रोव्स करते हैं, बिल्ड कॉन्फिडेंस, बिल्ड बॉन्ड, गेम्स खेलते हैं हम लोग, वो सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ करते हैं, दैट इज़ इंट्रोड्यूस फ्रॉम देम एंड देन वी ऐड ऑन टू दैट। हम लोग भी कुछ कुछ नई चीज़ें ऐड करते हैं फॉर अ बेटर, फॉर फ्यूचर जनरेशंस, कि वो लोग क्या कर सकते हैं, उनको क्या हेल्प लगेगा ये चीज़ का। तो रूम से लेके कॉलेज में सब सब चीज़ें बोला जाए तो आई थिंक वो जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ आगे ही जाने वाली है कि रंगमंच और कल्चरल क्यों, हमारा पर्सनल कल्चरल को या फिर कोई भी, धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस एंड देन पैशन, वो धीरे धीरे आगे ही लेके जाता है वो चीज़ को। एंड मुझे लगता है कि उन्होंने, इवन दो वो क्रेडिट नहीं देते खुद के जनरेशन के, या फिर रॉ थे, मिसफिट्स थे, बट स्टिल आई थिंक कि उन्होंने वो चीज़ें हम लोगों के लिए एस्टैब्लिश की, देन दे लर्नड एंड दे टॉट अस इन अ वे, डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे, बट वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम देम। एंड वी आर ट्राइंग टू पुश कि हम लोग और बेटर कर सके दिस आर्ट फॉर्म को, दिस स्टेज को, एंड पर्सनली खुद को। एंड आई हैव लर्न कि मैंने किया है, एंड आई होप कि बाकी भी करेंगे वैसा। तो दैट इज़ आई थिंक द कंक्लूजन कि है, इट विल गो फॉरवर्ड। एक्चुअली मैं भी जब अभी देख रहा हूँ ना बाकी जो मेरे जूनियर्स, लाइक इफ वी कंसिडर द फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किड्स, तो दे आर नोइंग मोर अबाउट द सोशल मीडिया। इफ आई specifically talk about the social media wala thing, they can actually bring the engagement in the content, they know what people wants, and we are still figuring out कि editing कैसे करनी है। ठीक है, तो Exactly. that's मतलब वो बहुत rapidly grow हो रहा है। and I was thinking it is happening only on social media thing, but if we consider the theater तो बहुत offline चीज है, like it's पूरा organic, पूरा मतलब stage पे आके on ground काम करना है, तो that is also happening in that। so मतलब बहुत अच्छा एक चीज है इन जनरेशन वाइज, राइट।